ہم ایک محتاجی کی زندگی گزارتے اور آج ہم آنکھوں سے اللہ کی کتنی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نگاہوں کی نعمتیں اگر ہمارے پاس میں نہ ہوتی تو یہ اجالے بھی ہم نہ دیکھ پاتے، یہ باغ و بہار کا جو سما ہے اس سے بھی ہم لوگ سرور حاصل نہیں کر پاتے۔ اگر یہ نگاہوں کی نعمتیں ہمارے پاس میں نہ ہوتی تو یہ جو رنگ رنگیلیوں کی شکل کے اندر جو نعمتیں الہیہ جگہ جگہ سبزہ زاروں کے اندر بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، ان کا مشاہدہ کرنے سے ہم لوگ جو ہے وہ عاجز رہ جاتے۔ تو اللہ نے یہ چھوٹی سی آنکھ کے کٹورے کے اندر کتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ نعمت جب اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ ان آنکھوں کو اسی طریقے سے اپنی زندگی میں استعمال کرے جسے نعمت دینے والا پروردگار راضی ہو۔ ان نگاہوں سے ہم اچھی چیزوں کا مشاہدہ کریں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو ہم لوگ دیکھیں، ان نگاہوں کے ذریعے قرآن مقدس کا دیدار کریں، تلاوت سے شرف یاب ہوں، والدین کا چہرہ دیکھیں، اگر خدا سعادت دے تو کعبۃ اللہ کی بہاروں کا مشاہدہ کریں، گنبد خضرا کے حسین جلووں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے، تنہائی میں جب کوئی نہ ہو، کوئی نہ دیکھنے والا ہو تو اس وقت ان آنکھوں سے کچھ قطرے اللہ کے خوف سے گرائیں تاکہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ جیسا کہ احادیث کریمہ کے اندر موجود ہے، بندہ تنہائی کے اندر جب اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، ان آنکھوں کو جب اس طرح سے استعمال کرتا ہے تو قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، اس وقت جب ہر شخص دھوپ کے اندر پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے، اور اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کانوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور دل کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا اور ان نعمتوں کو کس طرح تم اپنے کام کے اندر لے کر کے آئے۔ حضرات مکرم، یہ ہے نعمت، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائے اور وہ نعمت دینے والا پروردگار ہمیں بتا بھی دے کہ اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال مت کرنا، فلاں فلاں چیز کو مت دیکھنا، اس نعمت کے ذریعے میری اس طرح سے نافرمانی مت کرنا۔ اب اس کے باوجود بھی بندہ اللہ رب قدیر نے جو آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی ناشکری کرے، گندگیوں کو دیکھے، ناجائز چیزوں کی طرف نظریں اٹھائے اور غلط طرح کی فلموں کو دیکھے، تصاویر، اخبارات اور جو ہے وہ ناولوں کے اندر چھپنے والی غلط تصویروں کا جو ہے وہ مشاہدہ کرے، ان آنکھوں کے ذریعے جو ہے وہ نامحرموں کو دیکھے، ان آنکھوں کے ذریعے غلط چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے پروردگار کو جو ہے وہ ناراض کرے۔ حضرات مکرم، آپ حضرات خوب جانتے ہیں، معاشرے کا ماحول بھی آپ جانتے ہیں، حالات کے تقاضے بھی آپ کو پتہ ہے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور شریعت بھی یہی چاہتی ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم بھی یہی ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے گندگیوں کو نہ دیکھا جائے۔ آپ خود تصور کریں کہ اگر کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی کے اندر اگر ننگی چیزوں کو کوئی دیکھتا ہے، غلط چیزوں سے اپنی آنکھوں کو آلودہ کرتا ہے، وہ سوسائٹی کا بھی مجرم قرار پاتا ہے، معاشرے کا مجرم قرار پاتا ہے، انسانیت کا مجرم قرار پاتا ہے، فطرت سے بغاوت کرنے والا کہلاتا ہے، اور شریعت مطہرہ کی حدوں کو توڑنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں بالکل ظاہر ہیں، ہر عقل مند انسان ان کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن آج کے حالات کو آپ دیکھیں، آج اسلام دشمن طاقتوں نے ہماری نگاہوں کو خراب کرنے کے لیے ایسا مواد ہماری نگاہوں کے سامنے پروس دیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس غلط طریقے اس کے مواد سے اپنی نگاہوں کو نہیں بچا پاتے۔ اب ایسے موقع پہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مسلمان مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے محبوب مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، اور دوسری طرف اسلام دشمن طاقتیں کیا چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو لوگ خواہشات کے پجاری ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بالکل ٹیڑھے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم پوری طریقے سے ٹیڑھے ہو جاؤ۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم ٹیڑھے ہو جائیں، اگر ہم بگڑ جائیں، اگر ہم اپنی زندگیوں کو خراب کر لیں تو اس دشمنان اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرات مکرم، اس سے ان کا بڑا فائدہ ہے، اس کے اندر ان کا بڑا نفع ہے۔ آپ دیکھیں، جب 200 سال تک اسلام اور عیسائیت کی جنگ چلتی رہی، 200 سال تک صلیبی جنگوں کے اندر، ہر مارکے کے اندر، ہر میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمان ہر میدان کے اندر کامیاب رہے۔ 200 سال کی یہ جنگیں جب اپنے آخری پوائنٹ پہ پہنچی، جب اپنے نقطۂ اختتام پر پہنچی، تو مرتے وقت میں ان جنگوں کا جو ہیرو تھا صلیبیوں کا، سینٹ لوئس، اس نے آخری وقت کے اندر دنیا سے جاتے جاتے اپنے لوگوں سے کہا تھا، ہم نے 200 سال تک تلوار کے ذریعے جنگیں کی لیکن کوئی نتیجہ سمجھ میں نہیں آیا، اسلام اور اہل اسلام ہر میدان کے اندر غالب رہے، سرخرو رہے۔ اب میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اب اگر تمہیں کامیابی چاہیے اور مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہو، اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے ہو، اب اس کے لیے 3 باتوں کا تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ پہلا کام تم لوگ یہ کرنا کہ مسلمان بادشاہ ہیں، مسلمان حکمراں ہیں، ان کو آپس کے اندر لڑاؤ، کیونکہ جب وہ آپس میں لڑیں گے
उनकी ताकत खुद ही फना हो जाएगी, वो हमारा मुकाबला करने की हिम्मत न रखेंगे। और दूसरा काम ये करो कि इन इस्लाम पसंद ताकतों के अंदर जो दीन के ऊपर मजबूती से कायम रहने वाला है, ऐसे लोगों को पनपने मत दो, क्योंकि जो लोग दीन के अंदर मजबूत होते हैं उनसे कुफ्र कभी मुकाबला नहीं कर पाता, और जो दीनी एतबार से कमजोर होते हैं उनको पैसों के जरिए भी खरीदा जा सकता है, उन्हें ख्वाहिशात के जरिए भी बहकाया जा सकता है। ऐसे दीन से दूर लोगों को किसी भी मैदान के अंदर झुकाया जा सकता है। लिहाजा जो लोग दीनी एतबार से मजबूत हो उनको माशरे में, मुल्क के अंदर, सोसाइटी में उनको पनपने मत दो, उनको दबा करके रखो। और तीसरी नसीहत और वसीयत में तुमको ये करता हूं, मुसलमानों के अंदर बदउनवानी और फहाशी आम करो, नंगा जो है वो नंगापन उनके अंदर आम करो, कुरानी उरियानियत उनके अंदर आम करो। अब आप सोचें कि वो दुनिया से जाते जाते ऐसी वसीयत क्यों कर रहा है, उसकी वजह यह है, हज़रत मुकर्रम बंदा जब नेक होता है, गुनाहों से बचता है, अपने रब से डरता है, अपने नबी से प्यार करता है, तो फिर हर मैदान के अंदर उसकी नजर में एक ही बात होती है, अल्लाह कैसे राजी होगा, अल्लाह के रसूल कैसे राजी होंगे, मेरी दुनिया कैसे संवरेगी, आखिरत के अंदर मैं कैसे कामयाब हो जाऊंगा, मैं जहन्नम से कैसे बचूंगा, मैं जन्नत के अंदर कैसे जाऊंगा। लेकिन जब उरियानियत को आम किया जाएगा, जब नंगेपन को आम किया जाएगा, जब गंदी चीजों को आम किया जाएगा, जब निगाहें गंदी होंगी, निगाहें आलूदा होंगी, जहन आवारा होंगे, दिल जब जो है वो बुराइयों के अंदर मुलविस होंगे, और बंदा जब गुनाहों के दलदल के अंदर फंसेगा, आखिरत भी उसकी निगाहों से दूर हो जाएगी, क्योंकि अब गुनाहों की वजह से उसका नूर ईमान कमजोर होगा, और वो गुनाहों की वजह से आखिरत का यकीन भी खो बैठेगा, और फिर जहन्नम का डर भी उसके दिल से निकल जाएगा, जन्नत में जाने का शौक भी उसके दिल में बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने का जज्बा भी उसके दिल के अंदर सर्द हो जाएगा। बस यही एक फार्मूला है, यही एक टारगेट बना करके उन्होंने नंगेपन को आम किया, उरियानियत को आम किया, बेपर्दगी को आम किया, फौज चीजों को आम किया, और हमारे माशरे के अंदर पनपने वाले गलत अनासिर को उन्होंने इस माशरे के अंदर खपाया, ताकि मुसलमानों के अंदर जब ये गलत चीजें राइज हो जाएंगी, फिर उनको जब चाहोगे खरीद लोगे, जब चाहोगे दीन से दूर कर दोगे, जब चाहोगे ख्वाहिशात की गुलामी के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर दोगे। हज़रत मुकर्रम एक बड़ा लंबा ये जो है वो टारगेट है, बड़ी लंबी प्लानिंग है, उस पर काम हुआ, और उसके नताइज वो हालात आज हमारी निगाहों के सामने है। हज़रत मुकर्रम आज आप देखें, बड़े बड़े जो लोग नेक कहलाते थे उनका हाल क्या हुआ, और खास तौर से जो नई नस्ल परवान चढ़ रही है, जिनको अल्लाह उसके रसूल का सच्चा वफादार बनना चाहिए, उनका क्या हुआ। अगर वो सुधरना भी चाहते हैं तो नहीं सुधर पाते, अगर वो राय रास्त पे आना चाहते हैं तब भी सीधे रास्ते पे नहीं आ पाते, अगर वो नेक बनना चाहते हैं तो नेकी के रास्ते उनके लिए बंद कर दिए गए हैं, अगर वो गुनाह से दूर भी होना चाहें तो गुनाहों के दरवाजे इतने खोल दिए गए हैं, अगर एक दरवाजे से बचेगा दूसरे दरवाजे में ढकेल दिया जाएगा, दूसरे दरवाजे से बचेगा तीसरे दरवाजे में ढकेल दिया जाएगा। ये किसको पता नहीं है, इंसान के पास में नफ्स है, और नफ्स हजरत बायरी बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, नफ्स हमेशा बुरी चीजों को पसंद करता है और अच्छी चीजों से भागता है। इस्लाम दुश्मन ताकतों को इस बात का अंदाजा है कि ये नफ्स बड़ा जो है वो शरीर है, और जब इसके सामने गलत चीजों को पेश किया जाएगा तो इंसान कितना भी उसको पकड़ना चाहेगा ये उसके बस की बात नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, आज हमारे रास्तों के अंदर जो है वो जहां जरूरत न थी वहां पर भी गलत तरह की तस्वीरों के जरिए एडवर्टाइज लगा दी, ताकि मजबूर होकर के हम निगाहों को उठाएं, नफ्स के हाथों हम मजबूर हो जाए, और इंसान की जरूरत जो मोबाइल और जो सोशल मीडिया था उसको इतना गंदगियों से भर दिया कि इंसान अगर बचना चाहे तो भी नहीं बच सकता। अगर आप दीनी प्रोग्राम देखना चाहते हैं, अगर आप दीनी चीज की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी वो गलत तरीके से आपको बुराई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और अब तो ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, बंदा अगर गलती की तरफ ना भी जाना चाहे तो जानबूझ करके बार बार ऐसी गलत चीजें उसके सामने जो है वो सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए ओपन की जाती है कि बंदा जब एक बार देखेगा तो फिर बार बार उसका नफ्स तकाजा करेगा और नफ्स देखना चाहेगा। जो है नफ्स का तो मामला ऐसा ही है, बताया गया दूध पीते बच्चे की तरह है, दूध पीते बच्चे की तरह नफ्स का मामला है। यानी अगर बच्चे को जब दूध छुड़ाया जाता है, बच्चा जिद करता है, माँ अगर बच्चे की परवाह न करे और उसको दूध न दे तो फिर आखिर वो दूध छोड़ देता है, फिर उसके बाद में नहीं मांगता है। लेकिन अगर माँ पिघल जाए और बच्चे के रोने के ऊपर आ जाए और फिर कहे कि नहीं आज रहने दो, कल दूध छुड़ा दिया जाएगा, चलो एक दिन और रहने दो, 2 दिन के बाद दूध छुड़ा दिया जाएगा, तो बच्चा अगर जवान भी हो जाएगा तब भी दूध नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि नफ्स का मामला भी ऐसा ही है, अगर गुनाहों से उसको रोकोगे तो वो रुक जाएगा, और अगर तुम उसके सामने हथियार डाल दोगे तो फिर वो भी जो है वो शरारत के ऊपर आमादा होगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग रास्ते से चल रहे हैं, चलते चलते चूंकि कीचड़ था उन्होंने अपने कपड़ों को ऊपर उठा लिया, कपड़ा ऊपर उठा करके कीचड़ के अंदर चल रहे हैं, अचानक पांव फिसला और एक पांव कीचड़ के अंदर भर गया। अब उन्होंने सोचा कि अब जब पांव भर ही गया है तो कैसे इससे बचा जाएगा, चलो चल के पांव धुल लिए जाएंगे। अब वो कीचड़ ही के अंदर चलने लगे, थोड़ी दूर के बाद में जाकर के रोने लगे और रो करके कहा पहले मैं कीचड़ से बच रहा था लेकिन ये एक पांव कीचड़ में भर गया तो फिर मैं कीचड़ में चलने लगा। यही हाल हमारी जिंदगी का भी है, हम गुनाह से बचते हैं बचते हैं बचते हैं, लेकिन जब एक दो गुनाह हो जाता है ना फिर हम लोग गुनाहों के दलदल ही में फंसने लगते हैं, यहाँ तक के पूरे गुनाहों में लथपथ होकर के रह जाते हैं। आप देख ले अपनी जिंदगी को टटोल करके, आप बचते होंगे, गुनाहों से दूर रहते होंगे, लेकिन एक दो बार जब गुनाहों की तरफ आपके कदम बढ़ गए तो उसके बाद में फिर रुकने का नाम न लिया, आप दूर तक निकलते चले गए हैं। हज़रत मुकर्रम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसीलिए इरशाद फरमाया था कि नफ्स तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल कदीर ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया था, ऐ दाऊद नफ्स से दुश्मनी करो, इसलिए कि मेरी दोस्ती उसकी दुश्मनी के अंदर है। नफ्स क्या चाहता है, यही चाहता है कि बंदा गुनाहों के अंदर मुलविस हो, बुरे काम करे, बुरे कामों में उसे लुत्फ आता है, मजा आता है। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि 60 शैतान मिलकर के इतना फसाद नहीं मचाते हैं जितना फसाद एक बुरा दोस्त मचाता है।
क्योंकि शैतान तो नजर नहीं आता, बुरा दोस्त तो साथ में लगा रहता है। और फिर फरमाया 60 बुरे दोस्त मिल करके इतना फसाद नहीं मचाते हैं जितना फसाद एक नफ्स एक लम्हे के अंदर मचा देता है। क्योंकि दोस्त अगर बुरा है, एक नहीं 1000 भी है, तो वो बार आपके साथ में है, बंद कमरे में तो आपके साथ में नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो नफ्स है वो 24 घंटे आपके साथ में रहता है। जहां पे कोई बुराई नहीं आ पाती वहां पर भी वो नफ्स आपको बुराई के ऊपर आमादा करके आपकी जिंदगी के अंदर फसाद बर्पा कर देता है। हजरत मुकर्रम मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गाजियों की एक जमात आई और हाजिर होकर के जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो आए, मेरे आका ने फरमाया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये जिहाद असगर क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहाद असगर ये है कि बंदा अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जंग करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस पाक भी है सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करता है। अगर कोई बंदा नफ्स से जिहाद कर ले और नफ्स को पछाड़ दे तो अल्लाह की बारगाह में उसका बड़ा रुतबा और बड़ा मकाम हुआ करता है, लेकिन नफ्स के ऊपर काबू पा लेना और नफ्स को पछाड़ देना ये हर एक के बस की बात नहीं। अल्लाह जिसकी मदद न करे वो कभी भी नफ्स को नहीं पछाड़ पाएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही बंदा कामयाब हो पाता है। अब आप सोचें आज जितनी गंदगी और जितनी उरियानियत और जितना नंगापन हमारे माशरे और सोसाइटी और जो है वो सोशल मीडिया के अंदर पाया जाता है, ऐसे मामले के अंदर बच्चे तो बच्चे और जवान तो जवान, बूढ़े भी इन बलाओं के अंदर गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं। कितनों की जवानियां तो खराब हो चुकी, जो बुढ़ापे तक नेक थे अब उनका बुढ़ापा भी खराब हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए। हज़रत मुकर्रम अब ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? अजीज़ान मुकर्रम आप इस्लाम की तालीमात तो देखो, इस्लाम कितना पाकीज़ा मज़हब है। बताओ शरीयत मुताहरा ने ये हुक्म दिया कि अगर तुम तन्हाई में रहो तब भी अपने सतर को छुपा करके रखो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास में जाए तो जितनी जरूरत हो उतना ही सतर खोले, जरूरत से ज्यादा सतर न खोले। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया जानवरों की तरह बिल्कुल नंगे ना हो जाओ। बताओ इस्लाम की ये तालीम है। और दूसरी तरफ बंद कमरे की जो चीजें थी, जो छुपाने की चीजें थी, जिनको जो है वो बंद करके रखना चाहिए था, आज इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मुसलमानों की निगाहों को खराब करके उनके नूर ईमान को कमजोर करके उनके ईमान पे डाका डालने के लिए उन बंद कमरे की चीजों को इतना ओपन कर दिया कि बड़े तो बड़े बच्चे भी उन चीजों को देख रहे हैं। जब एक बच्चा उन चीजों को देखेगा जहां उसका शऊर भी नहीं पहुंच पाता है फिर उसका क्या हाल होगा वो आप माशरे के अंदर झांक करके अपनी निगाहों से आप देख सकते हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैंने कभी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का सतर नहीं देखा और कभी मेरे आका अलैहि सलाम ने मेरा सतर नहीं देखा। मियां बीवी की जो जिंदगी रहती है कोई बहुत ओपन जिंदगी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम की पाकीज़गी देखो, सारी जिंदगी साथ में गुजारी लेकिन कभी सतर पे नजर न डाली। और इस्लाम का हुक्म भी यही है, मर्द को चाहिए कि औरत के सतर पे नजर न डाले और औरत को चाहिए कि मर्द के सतर पे नजर न डाले। ये इस्लाम की पाकीज़गी का आलम। और उधर इस्लाम दुश्मन ताकतें मर्द और औरत नहीं बल्कि अजनबियों को वो सब चीजें दिखा रही हैं जिनको जो है वो देखना आम हालात के अंदर अपने मर्द और औरत के मियां बीवी को आपस में देखना भी जिनको जायज नहीं है। ऐसी चीजों को नंगेपन के साथ में दिखाने का सिर्फ एक मकसद है, तुम्हारी निगाहें खराब हो करके नूर ईमान कमजोर हो, और नूर ईमान कमजोर होने के बाद में वो तुमको जैसे चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, फिर तुम जो है वो उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। हज़रत मुकर्रम ये ऐसे हालात है। मेरे आका अलैहि सलाम ने क्या फरमाया कि अगर पहली मर्तबा नजर पड़ जाए तो झुका लो, पहली नजर माफ है, दोबारा मत देखना, अगर दोबारा देखोगे तो फिर अदाब के अंदर मुब्तला कर दिए जाओगे। हज़रत मुकर्रम आप सोचे और अंदाजा लगाए, एक अल्लाह के वली को अल्लाह ने इल्हाम फरमाया कि तूने बड़े बड़े गुनाह किए, हालांकि बहुत सी ऐसी कौमें जिन्होंने छोटे गुनाह किए थे उनको भी मैंने हिलाक कर दिया। जैसा कि हजरत अनस का बयान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम को इसलिए बर्बाद कर दिया कि वो कौम शर्मगाहों से खेला करती थी, अल्लाह ने उस पर अजाब भेजा, पूरी कौम को तबाह कर दिया। बताओ जो कौम शर्मगाहों से खेले अल्लाह ताला अजाब भेज करके उन्हें हिलाक कर दे। आज पूरे माशरे के अंदर कितने ऐसे अफराद मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया वगैरह पर नंगेपन को देख रहे हैं और नंगेपन का मुशाहिदा कर रहे हैं कि अजाब आने का मौका नहीं है, कि अजाब आने का मौका नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया था, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, क्या फरमाया था? मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं। फरिश्तों से फरमाया तो फरिश्तों ने क्या कहा था? क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ऐ अल्लाह तू क्या जमीन में ऐसे को नाइब बनाएगा जो जमीन के अंदर खून रेज़ियां करेंगे और जमीन में फसाद बर्पा करेंगे। नहनु नसब्बु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, हम तेरी हमद करते हुए तुझे सराहते हैं और तेरी पाकी बोलते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। रब ने बता दिया था कि इंसानों के अंदर बुरे लोग होंगे तो अच्छे लोग भी होंगे, और अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को सिर्फ नेकी करने की कुव्वत दी है, वो गुनाह नहीं करते हैं। अल्लाह ने उनको गुनाह करने की ताकत दी ही नहीं, तो वो अगर गुनाह से बचते हैं तो ये ज्यादा कमाल की बात नहीं है। अल्लाह ने इंसानों को जो है वो नेकी करने की ताकत भी दी और गुनाह की भी ताकत दी। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला फरमाता है नफ्स को हमने अच्छाई भी सिखाई और बुराई भी सिखाई। अच्छाई इसलिए सिखाई ताकि इस पे चलो, और बुराई इसलिए सिखाई ताकि इससे बचो। अब जो बंदा अल्लाह के डर से बुराई पर ताकत रखते हुए बुराई से बच जाए और नेक काम करे, रब फरमाता है अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, वो जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डर जाए और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोक ले तो जन्नत ही अल्लाह ताला ने उसका ठिकाना बना दिया है। तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों पर ताकत होने के बावजूद भी हमें गुनाहों से बचने की ताकत अता फरमाता है। हज़रत मुकर्रम
आज के इस नंगे माशरे और सोसाइटी के अंदर हमें कितनी जरूरत है अपने आप को संभाल करके रखने की। आप जरा थोड़ा सा अपने ज़हन पे जोर दें, आप इतना बताएं कि अगर कोई सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही हो, गाड़ी अगर 1 करोड़ रुपए की भी है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर अगर ब्रेक नहीं है तो गाड़ी कैसी होगी। अगरचे वो इतनी महंगी गाड़ी है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कब आपको किसी गड्ढे में ले जाके गिरा दे, कब जाकर के कहां पे एक्सीडेंट का शिकार कर दे। और इतनी महंगी होने के बावजूद भी वो गाड़ी आपके लिए मुफीद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। दूसरी गाड़ी सस्ती है लेकिन उसके ऊपर ब्रेक लगा हुआ है, तो अगरचे वो सस्ती है लेकिन आपको एक हिफाजत का तो एहसास है, मैं एक्सीडेंट से बचने के लिए ब्रेक लगा सकता हूँ, गड्ढे में गिरने से लिए कि जो है वो ब्रेक लगा सकता हूँ। हज़रत मुकर्रम हमारी जिंदगी का भी तो यही हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो जिंदगी की गाड़ी अता फरमाई है उसमें नफ्स जो है बेकाबू होकर के आगे बढ़ना चाहता है। अल्लाह ने हमें शरीयत की रस्सी का जो ब्रेक अता फरमाया है, हमें कदम कदम पे ब्रेक लगाना होगा। अगर कोई बंदा इन ब्रेकों को इस्तेमाल न करे और नफ्स को आजाद छोड़ दे तो दुनिया के अंदर तो बगैर ब्रेक के गाड़ी सिर्फ जान की हिलाकत का सबब बनती है, लेकिन अगर इंसान की जिंदगी की ये गाड़ी अगर नफ्स पे कंट्रोल करने वाला ब्रेक न लगाए तो सीधा उसको जहन्नम के गड्ढे के अंदर ले जाकर के गिराएगी। ये आलम है। इसीलिए तो हजरत यूनुस बिन यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, एक बार आप मस्जिद से निकले और मस्जिद से निकल करके जब जा रहे थे अपने मकान की तरफ, रास्ते में अचानक एक औरत पे नजर पड़ गई। जब औरत पे आपकी नजर पड़ी तो आप अपने घर पे गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह आंखें तेरी बहुत बड़ी नेमत है, तेरी बहुत बड़ी नेमत है आंखें, लेकिन अल्लाह मुझे डर लगता है इन आंखों की वजह से मैं हिलाक और बर्बाद ना हो जाऊं। अल्लाह मुझे गुनाहों से डर लगता है, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह इन आंखों को मुझसे ले ले। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और आप नाबीना हो गए। अब आप सोचे इंसान नाबीना बन करके जिंदगी गुजारे कितना मुश्किल काम है, लेकिन वो लोग जानते थे अल्लाह वाले अगर दुनिया के अंदर कुछ दिन की तकलीफ हो ये तो गवारा किया जा सकता है, लेकिन अगर निगाहें सलामत रहे और गुनाहों का बाजार गर्म रहे तो फिर जहन्नम के गड्ढे के अंदर अगर बंदा गिर गया तो क्या आलम होगा। उन्हें पता था इन आंखों के अंदर अगर मच्छर चला जाए तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, इन आंखों में अगर जहन्नम की आग को भरा जाएगा तो क्या होगा। तो दुआ की अल्लाह इन आंखों को तू ले ले ताकि मैं जहन्नम की आग से बच जाऊं। ये आलम था हमारे बुजुर्गों का। अल्लाह अकबर। और बंदा जब अपनी निगाहों को बचाता है ना, अल्लाह कितना बड़ा इनाम देता है। जब दिल्ली की सरजमीन पर कहत पड़ा, बारान रहमत का नुज़ूल रुक गया, सारे लोग जमा होकर के हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए कि बारिश नहीं हो रही है, दुआ फरमा दे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी प्यारी वालिदा मोहतरमा, बड़ी पाकीज़ा जो है तय्यबा ताहिरा वालिदा मोहतरमा के मुकद्दस दामन का एक डोरा निकाला और अल्लाह की बारगाह में उसी डोरे को पेश करके कहा, ऐ मौला तू जानता है ये दामन का जो डोरा है ये उस खातून के दामन का डोरा है जिसने सारी जिंदगी अपने आप को गैरों से बचाया। अल्लाह इस धागे के सदके में तू बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। जहां बड़े बड़े नेक लोग, बड़े बड़े पारसा लोगों की दुआएं अल्लाह की बारगाह में रद्द कर दी जाती है, ऐसे मौके पे अगर अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचा करके पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाली खातून के दामन का अगर डोरा भी अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए तो अल्लाह ताला उसकी भी लाज रखता है। इधर आपने दुआ की, बारान रहमत का नुज़ूल हुआ और लोग खूब जो है वो खुशहाल हो गए। हज़रत मुकर्रम अल्लाह की बारगाह के अंदर बड़ी कदर है पाकीज़ा लोगों की। आज जो हमारा जो हाल बना है उसकी वजह यही है, हमने अल्लाह के अहकाम को तोड़ा तो अल्लाह की बारगाह से दूर होकर के रह गए। जैसा कि हदीस पाक के अंदर आता है, जिस कौम के अंदर बदकारी आम हो जाती है उस कौम का रिस्क तंग कर दिया जाता है। सारी दुनिया परेशान है, अच्छा खासा सब चल रहा था, बैंक भी खूब अच्छे चल रहे थे, हुकूमतों के पास भी खूब पैसा था, लोगों के कारोबार भी चल रहे थे। ये अचानक क्या हुआ? क्या कोई जिन और भूत आया जो सारे खजाने लेकर के चला गया, सारे बैंकों को लूट करके लेके चला गया, सारी हुकूमतों के जो बैंक है उनको जो खत्म करके चला गया? कोई आने वाला नहीं आया। बैंकों में भी पैसा था, हुकूमतें भी माला माल थी, लोगों के भी जो है वो तिजोरियां भरी हुई थी। ये अचानक चंद सालों में कैसा वबाल आया? मेरे आका ने बता दिया, जब कौम में बदकारी आम होती है अल्लाह ताला उनके रिस्क को तंग कर देता है, और जब कुदरत की तरफ से तंगी आती है वो हाथ नजर नहीं आते, वो लेने वाला नजर नहीं आता। जिस तरह देने वाले हाथ नजर नहीं आते वैसे लेने वाले हाथ भी नजर नहीं आते। हमारे गुनाह जो है वो इस तरह से, हमारी बदकारियां, बदनजरियां और हमारी जो कौम के अंदर, माशरे के अंदर जो नंगापन पाया जाता है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ, और देखते ही देखते बैंक भी खाली हो गए, हुकूमतें भी कंगाल हो गई और हमारी तिजोरियों से भी माल धीरे धीरे खत्म होने लगा। हज़रत मुकर्रम आज अगर हम दोबारा अपने रब की बारगाह में आए और अपने आप को जो है वो पाकीज़गी के अंदर डाल दें तो फिर देखें अल्लाह ताला कैसे सब कुछ अता फरमाता है। आज आप देखें लोग कितनी शिकायत करते हैं कि कुछ याद ही नहीं रहता, ये भी भूल जाता हूँ, वो भी भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग तो बड़ा अच्छा था। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बंदों का जो दिमाग कमजोर होता है उसकी कई वजह है, उनमें से एक बड़ी वजह यह है शर्मगाहों को देखने से भी दिमाग कमजोर होता, बंदा भूलने की बीमारी में मुब्तला होता है। फिर जो है वो 2-4 साल नहीं बल्कि 2-4 मिनट पहले की बात भी याद नहीं रहती है। माशरे के अंदर तो ये सब कुछ है ही, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट पे कितना नंगापन देखा जा रहा है, कितनी गलत तस्वीरें देखी जा रही है। अब उसके बाद में अगर हमें निसियान की बीमारी ना होगी, भूलने की बीमारी ना होगी, अगर हमारा हाफजा कमजोर नहीं होगा तो क्या होगा? हज़रत मुकर्रम अपनी निगाहों को पाक करो, अल्लाह ताला दिमाग को भी रोशन फरमाएगा। कैसा पाकीज़ा जमाना था। जब हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ते हैं तो सोचते हैं हम लोग कैसे जमाने में हम लोग पैदा हो गए हैं। आज हम गुनाहों से बचना चाहे तब भी इस्लाम दुश्मन ताकत हमें बचने नहीं देती। हजरत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। इनका एक बेटा था, वो जंग में शहीद हो गया था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई तो कैसे आई? अपने चेहरे पर चादर डाल करके आई। जब किसी का बेटा, जवान बेटा चला जाए, उस माँ को होश नहीं रह जाता है, लेकिन वो जानती थी कि दुनिया के अंदर अगर हम मदहोश होकर के अल्लाह के हुक्म को टालेंगे, आज बेटा गया है, कल जहन्नम का अजाब तैयार है। बेटा चला गया, लेकिन अपने चेहरे पर चादर डाल करके माँ मेरे आका की बारगाह में आ रही है। एक शख्स ने कह दिया, तुम्हारा बेटा जो है वो इंतकाल कर गया, अपने बेटे के बारे में पूछने आई हो, तब भी चादर डाल के आई हो। हजरत उम्मे खल्लाद ने ऐसा जवाब दिया, आज की हमारी माँ और बहनें और आज के माशरे के अंदर रहने वाला अगर मुस्लिम नौजवान उस बयान को पढ़े, मैं कहता हूं सोने से भी ज्यादा कीमती उनकी वो बात है। उन्होंने ऐसा जुमला कहा, अल्लाह तबारक व तआला उस मुकद्दस खातून के ऊपर रहमत और अनवार की बारिश नाजिल करे। जब उनसे कहा गया बेटा चला गया और अपने चेहरे पे चादर डाल के आई हो, हजरत उम्मे खल्लाद ने जवाब ने कहा, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरी हया तो बाकी है। और बंदा जब बाहया होता है तो चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, बेहयाई का मुजाहरा नहीं करता। और जब अल्लाह उसके रसूल का डर ही निकल जाए, बंदा बेहयाई का शिकार हो जाए, मेरे आका ने फरमाया था जब बेहया हो जाओ तो जो मर्जी आए वो करो, क्योंकि हया जो है ये बंदे को बुरे कामों से रोकती है, लेकिन जब हया चली जाती है बंदा जो भी करे उतना कम है। आज ये बेहयाई ही की तो बात है कि हम खुद भी गंदगियों के अंदर पड़े हुए हैं और अपने माशरे की ख्वातीन को भी हमने गंदगियों के अंदर मुब्तला कर दिया है। खुशी के मौके पे आप देखें कितनी बेहयाई होती है। वो ख्वातीन जो आम दिनों के अंदर अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारती, वो ख्वातीन जो आम दिनों के अंदर गैर महरमों को अपना चेहरा नहीं दिखाती, हमने जो है वो सुना है ऐसी ख्वातीन भी जब खुशी के मौके पे फंक्शनों में जाती है तो लाली पाउडर लगा करके अपना दुपट्टा अपने घर पे रख के जाती है, ताकि बालों की स्टाइल भी लोग देखें, चेहरे का लुक भी लोगों को नजर आए और मेरा मेकअप भी लोगों के मुशाहिदे के अंदर आए। अब ये औरतें तसव्वुर करें, जब मरने के बाद रब की बारगाह में जाएंगी, रब इनसे पूछेगा तो ये क्या जवाब देंगी। लेकिन ये सब कब होगा? जब हया हो तब। ये सब कब होगा? जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का डर हो तब। लेकिन जब डर ही मिट जाए, हया ही जब खत्म हो जाए तो उसके बाद में कहानी वहीं पे खत्म हो जाया करती है। हज़रात मुकर्रम, बेहयाई और नंगेपन के इस माशरे के अंदर अपने आप को भी संभालना है, अपनी नस्लों को भी संभालना है। इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमें तबाह करने पे तुली है और हमें इस माशरे के अंदर अपने आप को बचाना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी प्यारी तालीम अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। फज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के साथ में सवारी पे पीछे बैठे हुए एक खशमी खातून आती है, तो उनकी नजर जब सहाबी की पड़ी उनके ऊपर, जब सहाबी की नजर जब पड़ी है फज़ल बिन अब्बास की, तो देखने लगे मेरे आका अलैहि सलाम ने पकड़ करके चेहरा घुमा दिया। मेरे आका अलैहि सलाम को ये गवारा नहीं है कि मेरा सहाबी किसी गैर औरत को देखे। हजरत मैमूना बयान करती है, मैं बैठी हुई थी, एक नाबीना सहाबी हजरत इब्न उम्मे मक्तूम आ गए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कहा पर्दा करो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये नाबीना है। मेरे आका ने फरमाया इनको नजर नहीं आता, तुमको तो नजर आता है। जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम किसको कह रहे हैं? हजरत मैमूना को कह रहे हैं, हमारी मुकद्दस माँ को कह रहे हैं, जिनकी पाकीज़गी का ये आलम है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है नबी की बीवियों तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। इतनी पाकीज़ा खातून से कहा जा रहा है कि तुम नाबीना नहीं हो, वो नाबीना है तो क्या हुआ। और हमारे माशरे में जो औरतें पाई जाती है वो कितनी पाकीज़ा है, वो कितनी नेक है, ये सब कोई जानते हैं। अब अगर वो इस तरह बेहयाई का मुजाहरा करेंगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा सबको पता है, लेकिन बंदा खुदा से डरे तब है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाती है कि कैसी प्यारी खातून है ये अंसार की। अभी रात में आयत उतरी है कि पर्दा करके बाहर निकला करो। रात में आयत उतरी है, फजर की नमाज के अंदर कितना टाइम रहता है, रात के अंदर बंदा मार्केट बंद है, दुपट्टा कहां से लाएगा। अल्लाह ताला उनके ऊपर हज़रत आयशा फरमाती है रहमतें नाज़िल करे। रात में आयत उतरी है, फजर की नमाज से पहले पहले औरतों ने अपनी चादरों को फाड़ फाड़ के दुपट्टे बना लिए, और जब फजर की नमाज में वो मस्जिद में पहुंची है तो दुपट्टा ओढ़ करके पूरे पर्दे के साथ में पहुंची है। इतना पाकीज़ा माहौल था वो, तो अल्लाह ताला की रहमतें उतरती थी। जब वो पाकीज़गी खत्म हो गई, माशरे में नंगापन और उरियानियत आ गई, तो आज हम जो है वो अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही है। आज हम कह रहे हैं अल्लाह ये हालात कैसे हो गए, आज हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है बंदे पहले अपना नामा अमाल देख। जब ऐसे बिगाड़ कौम के अंदर पैदा होते हैं तो अल्लाह की जो है अल्लाह के गज़ब का कोड़ा ऐसे ही उनके ऊपर बरसा करता है। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया था आखिरी वक्त में ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहन करके भी नंगी होंगी, और वो औरतों मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद मर्दों की तरफ माइल होंगी। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत नहीं, जन्नत की खुशबू भी अल्लाह ताला उनको नहीं अता फरमाएगा। जन्नत की खुशबू तो 500 साल से दूर तक आएगी, लेकिन ऐसी औरतों को अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। आज आप देख लें, आज कितनी औरतें कपड़ा पहन करके भी नंगी नजर आती हैं, चाहे हकीकत में सड़कों पर नजर आए, चाहे सोशल मीडिया इंटरनेट पे नजर आए, और वो किस लानत की मुस्तहिक है, और जो उनकी तरफ देखता है उसके ऊपर अल्लाह की कैसी लानत उतरा करती है। हज़रात मुकर्रम, वक्त के इन तकाज़ों को समझो, कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने अभी हदीस पाक बयान की हज़रत अनस की कि एक कौम को अल्लाह ने इसीलिए बर्बाद कर दिया कि वो शर्मगाहों से खेला करते थे, तो आज हम जो इन गंदे मनाजिर को देख रहे हैं, कहीं हमारी भी हलाकत का दस्तावेज न लिख दिया जाए, उससे पहले ही हमें होशियार होना चाहिए। और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, खूब अच्छी तरीके से बिठा लो, अल्लाह उसके रसूल हमारी भलाई चाहने वाले हैं। इस्लाम दुश्मन ताकतें हमारी दुश्मन है, वो हमारी भलाई चाहने वाली नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, निगाहों को झुका के रखो। ये कहते हैं इस एडवर्टाइज में गलत चीज देखो, इस तरह गलत चीजों को देखो, हम किसकी माने? हमें तो अल्लाह उसके रसूल के फरमान ही पे अमल करना चाहिए। एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली नजर माफ है, दोबारा नजर मत उठाना, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं बार बार ये मनाजिर देखते रहो। हमें किसकी सुनना चाहिए? एक तरफ रब तबारक व तआला फरमाता है ऐ आदम के बेटे, तू जब कब्र में जाएगा और कीड़े जब तुझे खाना शुरू करेंगे, सबसे पहले कीड़े तेरी आंख से खाना शुरू करेंगे, तो सबसे ज्यादा आंख को बचाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा आंख को गंदा किया जा रहा है, आंख को मेला किया जा रहा है। जब आंख गंदी होगी तो दिल गंदा होगा, और जब दिल गंदा होगा इंसान का पूरा वजूद गंदा हो जाएगा।
आएगा। अब हमें किसकी सुननी है और किसकी माननी है? मेरे रब ने फरमा दिया, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ऐ ईमान वालों मेरे और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त मत बनाओ। अल्लाह ने फरमा दिया कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, उसको अपना दुश्मन बना के रखो। तो दुश्मन को दुश्मन ही समझो, दोस्त ना बनाओ। लेकिन हमने सारे दुश्मनों को आज दोस्त बना के रखा है। उन्होंने जितना गंदा मवाद दिया है सबको हमने सीने से लगाया है। अल्लाह उसके रसूल के जो फरामीन थे उनको हमने ताक पे सजा दिया है। अब उसके बाद में आसमान की तरफ निगाह उठा के देख रहे हैं, अभी रहमत उतरेगी, अभी रहमत उतरेगी, अभी रहमत उतरेगी। हज़रात मुकर्रम, ऐसे रहमतों की छतरियां नहीं तानी जाती है जब गौसे पाक जैसे पाकीज़ा लोग होते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जैसे पाकीज़ा लोग हुआ करते हैं, फिर वो रब की बारगाह में दुआ करते हैं, इधर दुआ निकलती है उधर कबूलियत अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमा दिया करता है। हज़रात मुकर्रम, ये तो चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, तफसील का चूंकि वक्त नहीं था, वरना आज इस्लाम दुश्मन ताकतें और लंबी प्लानिंग के अंदर लगी हुई है और उनका टारगेट ये है, अभी जितना नंगापन है ये कम है और ज्यादा नंगापन होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, अभी हालात वहां तक पहुंचेंगे जहां पे वो निगाहें देख रही थी जिनको हम गैबदान नबी कहते हैं, गैबदान नबी की निगाहें देख रही थी। मेरे आका ने क्या फरमाया था, वो वक्त भी आएगा लोग सड़कों के ऊपर गधों की तरह जुफ्ती करेंगे, सड़कों के ऊपर जिना करेंगे। बताओ, ऐसा वक्त भी आएगा। मेरे आका ने बता दिया, ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये जो नंगेपन के ये हालात वहीं पे लेके जा रहे हैं, उसी वक्त की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया गधों की तरह सड़कों पे जुफ्तियां करेंगे, ऐसा नंगापन भी आने वाला है। खुदा हमें उस नंगेपन से बचाए, उससे पहले ही हमें अपने आप को खूब जो है वो अपने आप को मोहतात करना होगा। जिंदगी की गाड़ी में नस पे ब्रेक लगाना होगा। अगर हमने ब्रेक फेल कर दिए तो फिर जहन्नम का गड़ा हमारा इंतजार करेगा। अल्लाह रब्बे क़दीर हमारी निगाहों की हिफाजत करे, हमारी नस्लों की हिफाजत करे। जिन लोगों का बुढ़ापा तबाह हो रहा है, अल्लाह उनके बुढ़ापे को बचाए, और जो हमारी आने वाली नस्ल, अल्लाह रब्बे क़दीर उन नस्लों को यहूद और नसारा के इन गलत प्लानिंग से अल्लाह ताला उन्हें नस्लों की हिफाजत फरमाए, ईमान पे इस्तिक़ामत अता फरमाए।